Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Today is our 32nd lecture, and today is our last lecture for the course of Digital Logic Design. In the previous lecture, we have seen details about synchronous counters. We have discussed binary counters. We have see how we can merge an up and down counter in a single circuit, and in the last we see that how we can design a BCD counter. In today's lecture we will see binary counter with parallel loads. Counter employed in digital systems quite often require a parallel load capability for transferring an initial binary number into the counter prior to count operations. Next figure shows the top level block diagram symbol and logic diagram of a 4-bit register that has parallel load capability and can operate as a counter as well. When equal to 1, the input load control disables the count operation and causes the transfer of data from the 4 data inputs into the flip-flops, and if the both control inputs are 0, the clock pulses do not change the state of the counter. Here you can see a block diagram of a 4-bit counter with a parallel load capability. We can see a data in and a count. C out is connected to all clocks. We have count and load, clear and clock input. C out is carry out. When count is 1, the counter operates as a normal counter. When load is 1, the data in is loaded into the count register, and clear sets the output, the states of all registers in a counter equal to 0, and the clock input is connected to all the clock of the flip-flops. Here you can see the detail of that block diagram, what is the logic behind that block diagram. Here C out, carry out. Its carry out is used to indicate that for the next states the flip-flop conditions, what the flip-flop conditions will be. Here C count is equal to 1, then J and K is equal to 1, and it operates as a normal counter. When load is equal to 1 and count is equal to 0, then the values in I0, I1, I2 and I3 is loaded into the JK flip-flops. You can see here the OR gate between J and K, which are connected with the count and load. Clear resets all the flip-flop. The clock is connected to all the clock inputs of the JK flip-flop, hence it is a synchronous counter. So this is a synchronous counter with a parallel load capability. The carry out becomes 1 if all the flip-flops are equal to 1 while the count input is enabled. This is the condition for complementing the flip-flop that holds the next significant bit. The carry out is useful for expanding the counters to more than 4 bits. The speed of the counter is increased when the carry is generated directly from the outputs of all 4 flip-flops, because the delay to generate carry bit is reduced. If we are going states from 111 to 000, only 1 gate delay occurs, whereas 4 gate delay occurs in the AND gate chain as shown in the previous figure. Similarly, each flip-flop is associated with an AND gate and receives all the previous flip-flop outputs directly instead of connecting the AND gates in the chain. The operation of the counter is summarized in the table shown next. Here, when clear is equal to 0, the function is the output of all counters are cleared to 0. When load is 1, it loads the input
data from the input lines, and when count is 1 it starts counting to next to binary state, and when both are 0 0 no change will occur in the states of the counter. A counter with a parallel load can be used to generate any desired count sequence. Next figure shows two ways in which a counter with parallel load is used to generate the BCD count. Here, the AND gate in the figure A detects occurrences of the state. This is 1 0 0 1. The count is initially cleared to 0, and then clear and count inputs are set to 1, and the counter is always active. As long as the output of AND gate is 0, the positive edge clock increments the counter by 1, and when the clock gate equals to 1, the condition activates the load input. Therefore, on the next clock edge, the register does not count but is loaded from its 4 inputs. Since all 4 inputs are connected to logic 0 and all zeros values is loaded in the register of the following count 1 0 0 1, thus the circuit goes through from the count 0 0 0 through 1 0 0 1 and back to 0 0 1 and is required in a BCD number. Now it is with AND gate, and it is with this figure is with the NAND gate. The spikes may be undesirable, and for that reason the configuration is not recommended. If the counter has a synchronous clear input, it is possible to clear the counter with the clock after an occurrence of 1 0 0 1. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सिंक्रोनस काउंटर्स क्या होते हैं, बाइनरी काउंटर्स को हमने देखा था बाइनरी अप काउंटर और बाइनरी डाउन काउंटर क्या क्या होते हैं और किस तरह से वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और आखिर में हमने एक बीसीडी काउंटर, सिंक्रोनस बीसीडी काउंटर डिजाइन किया था. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बाइनरी काउंटर्स विद पैरेलल लोड्स क्या होते हैं. बास काउंटर्स में हम लोग एक पैरेलल लोड की कैपेबिलिटी ऐड करवाते हैं ताकि जो काउंटर इनिशियली 0 0 0 से काउंट कर रहा होता है, जो नंबर हम उसको लोड करवाएंगे वो उस नंबर से आगे काउंट करेगा. ठीक है, जिस तरह मेरे पास एक 4 बिट काउंटर है और मैं चाहता हूं कि वो 15 से काउंट स्टार्ट करे, वो 10 से काउंट स्टार्ट करे, 10 से 15 तक काउंट करे और फिर 0 हो, तो उसके लिए मुझे फिर ये बाइनरी काउंटर विद पैरेलल लोड को यूज करना पड़ेगा. ठीक है, इसकी अगर मैं एक ब्लॉक डायग्राम देखें तो ये मेरे पास एक ब्लॉक डायग्राम आ रही है. इसके अंदर ए काउंट आउटपुट आ रहा है, डेटा इनपुट डेटा लोड करवाने के लिए जो डेटा की लाइंस अवेलेबल हैं वो हैं. ठीक है, लोड और काउंट की ऑप्शन है. काउंट 1 होगा तो ये काउंटर के तौर पे काम करेगा, लोड 1 होगा तो डेटा आपके पास लोड होगा. ठीक है, क्लियर इनपुट सारा को क्लियर कर देगी. ठीक है, और सीएल के जो क्लॉक की इनपुट है वो ये आ रही है आपके पास. अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो आपको कुछ इस तरह का सर्किट नजर आता है. ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास काउंटर, हम लोग बाइनरी काउंटर पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो जे के अगर मैं जे और के इक्वल टू 1 दूं और इसको नेक्स्ट एंड गेट से कनेक्ट करता जाऊं, ठीक है, नेक्स्ट एंड गेट से कनेक्ट करता जाऊं तो मेरे पास एक काउंटर के तौर पे ये बन जाएगा. ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये अगर मैं इसमें से इन और गेट्स को हटा दूं, ठीक है, तो मेरे पास ये एक बाइनरी काउंटर ही बन रहा है. मगर अब मैंने इनमें लोड की कैपेबिलिटी भी ऐड करनी है, तो मैं लोड वाला पोर्शन ऐड करता हूं. ठीक है, अब लोड वाला पोर्शन क्या करेगा, जब काउंट 0 होगा तो यहाँ पे आपको 0 0 मिलेगा, मगर जब लोड 1 होगा तो जो आई नॉट की वैल्यू होगी, ठीक है, जे में वो चली जाएगी और के में उसके अकॉर्डिंगली कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू चली जाएगी. ठीक है, 0 1 होगा या 1 0 होगा, ये 0 0 इकट्ठे नहीं होंगे लोड के केस में. ठीक है, लोड के केस में 0 0 जाहिर बात है, अगर आप जे में 1 लोड कर रहे हो तो के में आपको 0 करना है. ठीक है, अब के में 1 होगा तो फिर जे में 0 होगा. तो जो वैल्यूज हमने लोड करनी है वो i0 i1 i2 i3 आपके पास लोड हो रही हैं. इसी तरह एक क्लियर की इनपुट है. ठीक है, क्लियर इनपुट जो है वो सारे काउंटर्स की आउटपुट स्टेट को क्लियर कर देगी. ठीक, और जो क्लॉक है वो सारों की इकट्ठी कनेक्टेड है,
तो इसका मतलब है ये एक सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर विद पैरेलल लोड कैपेबिलिटी है। अब ये सी आउट आपको नजर आ रहा है, ये सी आउट यही वाला एक एंड गेट का ऑपरेशन अगर आप देखें तो ये यही एंड गेट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये वाला एंड गेट नेक्स्ट स्टेट के लिए है। तो इस सी आउट या कैरी आउट के थ्रू हम इस काउंटर को बड़ा भी बना सकते हैं। हम 4 से 8 पे जा सकते हैं, 4 से 5 पे जा सकते हैं, 6 पे जा सकते हैं। तो ये सी आउट आपको उसमें हेल्प करेगा, आपको नेक्स्ट काउंटर के साथ अटैच करेगा, ठीक है। ये यही सारी बातें लिखी हुई हैं जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। The condition for complementing that holds the next significant bit the carry out is useful for expanding। अच्छा जी, ठीक है। अब ये कैरी आउट को अगर आप देखें तो इसकी डिले अकरेंसेस आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। इसीलिए अगर हम इसको यहाँ से देखें तो इस केस में आपके पास 0 0 0 0 1 1 1 से 0 0 0 में एक गेट डिले की अकरेंस आएगी, ठीक है। क्योंकि जब ये जीरो होगा, ठीक है, तो बाकी सारे इनिशियली प्रीवियस जीरोस मिल रहे हैं, तो ये एक गेट डिले की अकरेंस आएगी। मगर बाकी केसेस में आप देखो तो आपको 4 गेट डिले अकर होती है एंड गेट चेन के अंदर, 1 2 3 और फिर ये 4। तो बाकी केसेस के अंदर आपको ये 4 एंड गेट्स की डिले आएगी आपके पास। तो ये जो आ रही होती है, इस तरह आप डिले को देखते हैं, ठीक है। Similarly, each flip-flop is associated with an AND gate that receives all previous flip-flops output directly instead of connecting an AND gates in the chain। तो अगर हम इसमें देखें, हम इसको जो ये AND गेट है ये प्रीवियस के साथ इनपुट के साथ कनेक्टेड है, ये AND गेट इस प्रीवियस इनपुट के साथ कनेक्टेड है, ये AND गेट इस प्रीवियस तो ये एक चेन में नहीं है, ठीक है। जिस तरह ये वाले एक चेन में है, ये चेन में नहीं है, ये प्रीवियस इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ऑपरेशन ऑफ काउंटर्स, अगर मैं इस काउंट और लोड का ऑपरेशन देखूं तो मेरे पास ये टेबल में क्लियर है, ठीक है। जब क्लियर 0 है तो कोई चीज़ मेंशन नहीं करती है कि क्या वैल्यूज़ है उनकी, वो जस्ट क्लॉक को 0 कर देगी। जब क्लियर 1 है, सॉरी क्लॉक को 0 नहीं, आउटपुट को 0 कर देगी। जब क्लियर 1 है तो नेक्स्ट पॉजिटिव एज के ऊपर अगर लोड 1 है तो वो सारी वैल्यूज जो आई नॉट लोड इनपुट्स पे अवेलेबल होंगी, वो सारी वैल्यूज आपके पास काउंटर के रजिस्टर्स में लोड हो जाएंगी। और फिर अगेन नेक्स्ट क्लॉक काउंटर के ऊपर अगर काउंटर 1 है तो आपको वो नेक्स्ट बाइनरी स्टेट जो बनेगी काउंटर की, वो आपको आउटपुट पे आ जाएगी। और जब लोड और काउंट दोनों 0 0 हैं तो कोई चेंज अकर नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक चीज का ख्याल करते हैं कि हमारे पास दोनों इनपुट्स कभी भी काउंट और लोड की दोनों इनपुट्स 1 1 नहीं हो सकती है, ठीक है। इसमें ये है कि दोनों 1 1 होंगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम अकर होती है, इसीलिए हम एक टाइम पे एक इनपुट को ही 1 सेट करते हैं, ठीक है। बल्कि नहीं, हाँ जी, लोड 1 होगा तो काउंट के कंडीशन को कोई नहीं देखा जाएगा। काउंट पे चाहे 0 हो चाहे 1 हो, वैल्यूज लोड ही होंगी। अगर दोनों 1 1 होंगे तो भी वैल्यूज लोड ही होंगी। सॉरी, मैं गलत कह गया था। आप ये इस टेबल में देखिए, ये डोंट केयर का निशान सिंबल आपको नजर आ रहा है काउंट के ऊपर। तो जब भी लोड 1 होगा तो लोड की प्रायोरिटी ज्यादा काउंट से, और जब लोड 0 होगा तो फिर आपके पास या तो वो काउंट टू नेक्स्ट बाइनरी स्टेट होगा या नो स्टेट होगा, वो काउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मगर जब भी लोड 1, दोनों अगर वैल्यूज 1 1 होंगी तो हमेशा इनपुट्स रजिस्टर के अंदर लोड होंगी। इसी तरह अगर हम देखें तो काउंटर विद पैरेलल लोड को हम किसी भी सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे इस केस में हम लोगों ने एक बीसीडी यूज किया है, बीसीडी काउंटर यूज किया है। ये एंड गेट के साथ है, ये नैंड गेट के साथ है, ठीक है। अब जब भी 1 0 0 1 अकर होगा, ठीक है, तो लोड हम करवा देते हैं और इनपुट इज इक्वल टू 0 0 0 है कि जब भी 9 अकर होगा तो ये 0 0 लोड हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह अगर नैंड गेट के केस में देखें तो जब भी A1 और A3
क्योंकि 1001, ठीक है, ये 1001, तो ये दोनों इनपुट्स जब A1 और A3 1 1 होंगी तो आपके पास यहाँ पे क्लियर 0 हो जाएगा। तो ये क्लियर 0 का मतलब ये है कि आपके पास ये क्लियर इनपुट के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इनपुट से इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये सारा 0 0 0 हो जाएगा और फिर काउंट 1, क्योंकि काउंट 1 है, लोड 0 है, तो इनपुट आप दो ना दो, ये आपके पास एक बाइनरी काउंटर के तौर पे चलता जाएगा। जब ये दोनों वैल्यू 0 0 होंगी तो ही आपके पास यहाँ पे ये दोबारा रीसेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने लोड इनपुट को यूज करते हुए बनाई है कॉन्फ़िगरेशन, और ये हमने क्लियर इनपुट को यूज करते हुए बनाई है, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? NAND gate detects the count of 1001, but as soon as this count occurs, the register is clear. The spike may be undesirable for that configuration. जो 1001 जो NAND गेट से हम करते हैं, ठीक है, उसमें जो स्पाइक आता है वो अनडिजायरेबल है। This configuration is not recommended if the counter has synchronous clear input. It is possible to clear counter with the clock after an occurrence of 1001. तो जैसे ही ये 1001 अकर होगा, एकदम से क्लॉक 0 हो रही है, ठीक है। तो ये जो स्पाइक आता है ये कभी ये ज्यादातर रिकमेंड नहीं होता कि एकदम से आप 0 कर रहे हो, ठीक है। एज सुन एज वो अकर होगा एकदम 0 हो जाएगा, आपके पास ये काउंट आपको नजर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज को ये कॉन्फ़िगर रिकमेंड नहीं होती है, ठीक है। हम क्लियर जो करते हैं ना वो नेक्स्ट क्लॉक पे क्लियर कर सकते हैं आफ्टर द अकरेंस ऑफ के 1001 अकर हो, उसके नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में आपके पास काउंटर रीसेट हो, ठीक है। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आपके पास रिकमेंडेड होती है। जो स्पाइक आता है वो अनडिजायरेबल आता है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास सिंक्रोनस काउंटर्स के अलावा और भी बहुत तरह के काउंटर्स आते हैं, ठीक है, जिनमें से एक आपके पास रिंग काउंटर है, ठीक है। अब रिंग काउंटर ये कि टाइमिंग सिग्नल्स दैट कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन डिजिटल सिस्टम कैन बी जनरेटेड बाय शिफ्ट रजिस्टर और बाय अ काउंटर विद द डिकोडर। अ रिंग काउंटर इज अ सर्कुलर शिफ्ट रजिस्टर with only one flip-flop being set at a particular time. All others are cleared. The single bit is shifted from one flip-flop to the next, produce the sequence of a timing signal. तो रिंग काउंटर ज्यादातर जो किसी भी डिजिटल सिस्टम में जो टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट करते हैं उनके लिए यूज होते हैं रिंग काउंटर्स, ठीक है। रिंग काउंटर्स में एक सर्कुलर शिफ्ट रजिस्टर होता है जिसमें एक फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो एक एट अ टाइम पार्टिकुलरली एक पार्टिकुलर टाइम में एक ही फ्लिप फ्लॉप आपके पास सेट होगा, मींस एक ही फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू 1 होगी, बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू आपके पास 0 होगी, ठीक है। अगर आप इसको देखें इस तरह का, ये एक इसको हम डिकोडर के साथ यूज करके टाइमिंग सीक्वेंसेस बना सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक क्लॉक है, ठीक है, और ये सर्कुलर शिफ्ट है, यानी आपके पास जो T3 की वैल्यू है वो दोबारा T0 में लोड हो रही है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू अगर 1000 है तो क्लॉक आपके पास ये आ रही है। अब T0 आपके पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। T1 में आप देखो तो इसके बाद जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आ रहा है वो T1 का आपको स्पाइक मिलेगी, इसी तरह T2 की मिलेगी और फिर आपके पास T3 की मिलेगी, ठीक है। तो जहां T0 0 है वहां पे ये T1, इस तरह से आपके पास ये मुख्तलिफ टाइमिंग सिग्नल्स 4 ऑपरेशंस के लिए आपके पास टाइमिंग सिग्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है। जब काउंट इनेबल होगा तो ये 2 बिट काउंटर है, ये 0001 1011 देगा, ठीक है। अब 00 के ऊपर T0 आपको मिल रहा होगा, 01 के ऊपर T1 आपको T0 1 होगा, 01 के ऊपर T1 आपके पास एक्टिव होगा, ठीक है। 10 के ऊपर T2 आपके पास एक्टिव होगा और 11 के ऊपर T1 आप। तो ये आप देखो कि ये क्लॉक साइकिल्स के साथ चल रहे हैं, ठीक है। जब और ये मेरे ख्याल नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक यूज हुई है इसमें, क्योंकि जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो आपके पास कंडीशन चेंज हो रही है, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, ये वाला जैसे ही 0 होगा ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो ये वाला ऑपरेशन आ रहा है, नेक्स्ट पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो ये क्लॉक ऑपरेशंस के ऊपर आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्लॉक ऑपरेशन में आपको ये वाला सिग्नल मिला, ठीक है। सेकंड क्लॉक में ये वाला मिला, बाकी 0 हो गए। थर्ड वाले में ये मिला, बाकी 0 हो गए।
फोर्थ वाले में ये मिला, बाकी 0 हो गए। तो ये काउंटर और डिकोडर है, ये मिला के आपके पास एक रिंग काउंटर बनता है इस तरह का। इसके अलावा हमारे पास जॉनसन काउंटर है, ठीक है। जॉनसन काउंटर, a k-bit ring counter circulates a single bit among the flip flops to provide k distinguishable states, ठीक है। एक k-bit रिंग काउंटर है कि जो आपको k distinguishable states देता है। The number of states can be double if shift register is connected to a switch tail ring counter। आप अगर इसको सीरियली कनेक्ट करो, स्विच टेल रिंग काउंटर की कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करो, तो आपके नंबर ऑफ स्टेट्स आप ज्यादा भी कर सकते हो, डबल। अगर 2 काउंटर्स को अटैच करोगे तो वो डबल हो जाएंगी। A Johnson counter is a k-bit switch ring tail with 2k decoding gates to provide the output of 2k timing signals। तो जॉनसन काउंटर भी टाइमिंग सिग्नल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। आप इसको स्विच टेल कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए, स्विच टेल ये कहते हैं कि इसकी आउटपुट ई जो है, इसकी आउटपुट सी, ए की आउटपुट बी पे इनपुट है, बी की आउटपुट सी की इनपुट है, सी की आउटपुट डी की इनपुट है, और डी की आउटपुट आपको मिल रही है और इसकी कॉम्प्लीमेंटिंग दोबारा डी में जा रही है, तो क्लॉक के साथ ये आ रही है। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को आप जॉनसन काउंटर का नाम देते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो आपको जो एंड गेट रिक्वायर्स फॉर द आउटपुट, आपको अगर जो इनके ऊपर हम एंड गेट्स लगा दें ए बी सी डी ई के ऊपर, तो आपको ये रिक्वायर्ड टाइमिंग सिग्नल्स मिल सकते हैं। जैसे 0 0 0 0 चाहिए तो ए बार ई बार है, ठीक है। सीक्वेंस नंबर 2 1 0 0, आपको 1 0 0 चाहिए, फिर 1 1 0, फिर 1 1। इस तरह के सीक्वेंसेस आप इस एंड गेट्स को इनके आउटपुट्स पे लगा के ये हम मुख्तलिफ सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास काउंटर्स विद अनयूज्ड स्टेट्स पहले भी आ चुका हुआ है, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके पास कुछ अनयूज्ड स्टेट्स आ जाती हैं, ठीक है। अनयूज्ड स्टेट्स को हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आप ये एक एग्जांपल है कि आपके पास 0 0 1 है, ठीक है, और दोबारा 0 0 0 है। इसमें आप देखें तो 1 2 3 यूज़ नहीं हुई है, 4 5 6 है, ठीक है। 3 और 7 यूज नहीं हुई हैं, 1 और 0 1 1 ये अनयूज स्टेट्स हैं। अब ये जो अनयूज स्टेट्स हैं ये एज अ डोंट केयर कंडीशन के तौर पर चलती हैं। देयर आर इक्वेशन व्हेन अ सीक्वेंशियल सर्किट uses fewer than this maximum possible number of states that are not used in specifying the sequential circuits are not listed in the state table। तो जो states हम लोगों की यूज नहीं हो रही होती हैं वो हम state table में लिखते भी नहीं हैं। In simplifying the input equations, the unused state may be treated as don't care conditions or may be assigned specific next states। It is important to realize that once a circuit is designed and constructed, outside interference during its operation may cause the circuit to enter one of the unused states। अगर एक याद और जो डोंट केयर कंडीशंस हैं उनको इक्वेशन की सिंप्लीफिकेशन के जब हम कर रहे होते हैं तो हम एज अ डोंट केयर कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है कि जब आप एक सर्किट को डिजाइन करते हो और बना लेते हो तो जैसी कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस अगर होगी तो वो जो सर्किट है वो आपका इन अनयूज्ड स्टेट पे की तरफ जा सकता है, ठीक है। मे कॉज, जरूरी नहीं है कि जाए, मगर इट मे कॉज द सर्किट टू एंटर वन ऑफ द अनयूज्ड स्टेट। तो वो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है, ठीक है। अनयूज्ड स्टेट की तरफ जा सकता है। तो ये अगर आप देखें तो ये हम लोगों के पास जो ऊपर जो काउंटर है, ठीक है, ये उसकी ए बी सी आपको मिल रही है, क्लॉक डायग्राम मिल रही है। तो इसमें आप देखो के दोनों का 1 हो रहा है, ठीक है, ए और बी का 1 हो रहा है, जे के इधर बी से मिल रहा है, इसी तरह आउटपुट इससे सी से मिल रही है, ठीक है। तो ये काउंटर बन रहा है। अगर उसकी इक्वेशन सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये इक्वेशंस बनती हैं। तो आज हमने देखे, ठीक है, बाइनरी काउंटर विद पैरेलल लोड, जॉनसन्स काउंटर को देखा है, जॉनसन काउंटर, रिंग काउंटर, इनका हमने इंट्रोडक्शन देखा और हमने देखा था कि जो काउंटर विद अनयूज्ड स्टेट्स होती हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो जॉनसन और रिंग काउंटर है वो उसे जस्ट एक गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको पता हो वो एज सच इतनी डिटेल्स उनकी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। मगर बाइनरी काउंटर विद पैरेलल लोड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लाजमन गो थ्रू कीजिएगा, इन चीज़ों को गो थ्रू कीजिएगा। अगर कोई आपकी क्यूरी हुई तो इंशाल्लाह वो हम
क्वेश्चन आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।